Good morning, good afternoon, good evening. Today, 23rd May 2021, I, Lokesh Singh Bagre, representative of PSIUS, Ping Pong Philic Startup Incubation Unique Society and Ping Pong Club, I welcome you to all on today's Zoom meeting. Topic for discussion, problem and remedies for table tennis player, guidelines, Zoom meeting. Join Zoom meeting 30 minutes before start meeting. Meeting ID, password, mute during meeting, raise your hand, then unmute and share your opinion. Listen other and their views. Organizers, Mr. Ajay Dudeja, Sir, Ping Pong Club, Mr. Lokesh Singh Bagre, PSIUS, India. Participants welcome. Here are few points for you all. One by one, unmute and share your opinion. Introduce yourself, name, city, state, country, problem, minimum 1 and maximum 2. So here is the floor open for all the participants. Share your views or opinion on today's topic, problem and remedies for table tennis player. Dr. Gaurav has been coaching his son these days in these tough times. And let's begin with Dr. Gaurav. That what does he feel about this crucial period actually which is going on? Yes, I've been coaching my son, but this 1 month, 1.5 months has been very difficult for everyone. Telling him to do yoga, do stretching exercises, all this, especially in the morning. Then maybe just doing these simple increasing the how I mean the exercise how you should increase the feel of the ball, tapping the ball, uh, putting underspin. So yes, he's been breaking a lot of table tennis balls, but I think it's worth it. Uh, uh, that's. I mean, we can't do much in such circumstances. I don't even allow him to go out of the house. So though I've just made an agility ladder just outside my house, but I don't let him practice his footwork also over there because this time it's this wave is really bad. So I've just been actually giving him exercises to improve his concentration, his focus, and feel of the ball. That's all I've done in this 1.5 months. Yeah, Lokesh, are you showing the Hello. present? Yeah, Lokesh, you are showing the. Sir. Yeah, yeah. So here, first of all, good afternoon, good morning, and good evening according to your time zone. And I am Lokesh Singh Bagre, representative of PSIUS Ping Pong Philic Startup Incubation Unique Society, and with Mr. Ajay Dudeja sir, who is representing Ping Pong Club, Delhi. We both decided to organize a Zoom meeting on a very common topic that we are presently facing. It is related with the topic that we are going to discuss. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे that is problems and remedies for table tennis players. Means what are the problems that we are facing in a current scenario due to corona COVID-19 pandemic. So the purpose of conducting this Zoom meeting is to find out the problems, to listen the problems that we are facing. Means इस मीटिंग को अरेंज करने का मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो ये है
कि हम जो दिक्कतें या प्रॉब्लम हमें फेस हो रही हैं उनको हम पॉइंट आउट करें, बिकॉज भी हम प्रॉब्लम जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। बलोनी जी, जी सर। आप बताना चाहेंगे मतलब आजकल जो टाइम जो चल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम, जिस तरह की हम प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं, तो आपका मतलब आपके ग्रुप में कैसी प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं? सर ग्रुप में तो कुछ ऐसा है नहीं, है नहीं ना, मतलब क्योंकि जो आजकल हम्म। हाँ कुछ कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग सभी घरों में ही हैं और हम्म। कहीं जाना हो नहीं पा रहा है। हम्म। तो कोई कॉम्प्लेक्सेस ओपन नहीं है, देयर इज नो प्रैक्टिस। हम्म। तो बाकी ये है कि वी आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एंड दे आर हैविंग देयर ओन शैडो प्रैक्टिस एट देयर मींस रेजिडेंसेस हाँ। एंड है ना, देयर आर नो प्लेस टू प्रैक्टिस एनीथिंग एंड जो भी है घर पे ही हो पा रहा है, हम्म। बाकी कहीं भी कुछ नहीं है। एंड इट इज आल्सो नॉट सजेस्टेड टू, है ना, मींस at this time we all must avoid हाँ हाँ this बिल्कुल। social gathering and you know, contact with anybody. So राइट राइट। it is advisable to practice at their place whatever they can, any fitness regime they can have, anybody can. राइट तो राइट। यही है सर, आजकल तो इतना ही हो पा रहा है। तो ये जो हमारे साथी सुमित मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, आप अपने बारे में बता सकते हैं? आप कहाँ खेलते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप, सुमित मिश्रा जो है? सर नमस्ते सर। मैं रेवा एमपी का हूँ, मध्य प्रदेश अच्छा का। अच्छा, ओके ओके ओके। राइट और राइट। मैं बैंगलोर में खेलता था, डीएनएम में कुणाल अच्छा। सर के अंडर खेलता था मैं। हाँ हाँ। तो बिकॉज ऑफ ये जिस मैं इधर शिफ्ट हो गया हूँ अभी घर में ही। हम्म। तो ये जो जेंटलमैन है मिस्टर लोकेश बागड़ी, वो भी रेवा डिस्ट्रिक्ट के ही हैं? वो सर सतना के हैं, मतलब पड़ोसी हैं मेरे। ओके 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 ओके। तो आप कुछ मतलब अभी जो आप फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाहें टीटी प्लेयर्स के लिए? सर प्लेयर्स में ये है कि ये तो एक एज अ चैलेंज लेते हैं हम कि हाँ ठीक है, कुछ ये दिक्कत है तो अपनी फिटनेस कम नहीं होने देंगे, या फिर ऐसा एक चैलेंज रहता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ स्टेट रैंकिंग्स कम हो गई हैं। जैसे सिर्फ स्टेट चैंपियनशिप हो जाएगी, टीम में आने के लिए फिर 5 ही प्लेयर अलाउ रहेंगे नेशनल पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो एक टेंशन प्लेयर्स में है, जो मतलब कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनके घर में पेरेंटल प्रेशर है कि टीम में नहीं आओगे तो खेलने नहीं देंगे। तो ओके। पहले वो टॉप 8 में भी आते थे तो उनको टेंट मिल जाती थी। यस। तो ऐसा प्रॉब्लम बस प्लेयर्स हो रहा है। कोई फिटनेस रिलेटेड तो उन लोग प्लेयर्स है, मैनेज कर ही लेंगे। आपका कहने का ये मतलब है कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बाद में कंपटीशन। रैंकिंग कम हो गई तो हाँ, तो जैसे साल में एक ही बार खेलने को मिलेगा, और उसमें भी कहीं ऊपर नीचे हुआ तो पेरेंट्स का प्रेशर अलग से है। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे ये बात हुई है कि भैया खेलना छोड़ना पड़ेगा, लगता है ऐसा वैसा। नहीं, खेलना छोड़ना तो खैर कोई वाइबल सोल्यूशन नहीं है। तो अभी हम जुड़ते हैं अपने साथी नहीं ऐसा मतलब बच्चे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मतलब कि फिटनेस कम हो जाएगी। वो तो प्लेयर्स ऐसा चैलेंज लेते हैं कि हाँ ये चैलेंज है, तो फिटनेस और गेम तो सबके लिए ही ये दिक्कत आई है। तो गेम और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे प्लेयर्स। राइट। तो मैं 1 मिनट के लिए मैं डॉक्टर गौरव को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट। जी। हाँ जी। सुमित, ये बहुत अच्छा है कि आप अपने फिटनेस के लिए कर रहे हैं। बाकी देखिए, हम लोग स्टेट रैंकिंग का तो मैं आई एम 45 नाउ। मैं दिल्ली में हम लोग खेलते थे। हमें अपना फोकस रखना है कि हाँ यार ये करना है और ये करके रहेंगे, बात खत्म। जी सर। सिंपल है। एग्जैक्टली। हमारे साथी मोहम्मद तजुद्दीन ज्वाइन किया है। आप बता सकते हैं अपने बारे में मोहम्मद तजुद्दीन? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ खेलते हैं आप? गुड आफ्टरनून। Yeah. मैं सिलचर से, सिलचर आसाम से।
असम। असम। तो अभी आपके यहाँ लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं चल रहा अभी? सेमी लॉकडाउन चल रहा है, दोपहर 12 बजे से लॉकडाउन होता है। ओ अच्छा, मतलब सुबह 6 से 12 बजे तक फ्री है, लॉकडाउन नहीं होता? नहीं होता है। ओ तो फिर दोपहर 12 बजे से कितने बजे तक लॉकडाउन है आपके यहाँ पे? सुबह 5 बजे। तो मतलब आप खेल मतलब मॉर्निंग 6 to 12 PM आप खेल सकते हैं दोपहर में जो? जी। ओके। तो आपको आपको कोई उधर आसाम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ ऐसा आपको लगता है? अब तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। टेबल टेनिस का पॉपुलैरिटी भी बहुत कम हो गया इधर। क्या कम हो गया? टेबल टेनिस का पॉपुलैरिटी कम हो गया? पॉपुलैरिटी कम हो गया। ओह अच्छा अच्छा। दुख की बात है ये। तो सर ये आजकल ही है तो इस कोरोना? पॉपुलैरिटी किस लिए कम हो रहा है जो? बच्चे लोग टेनिस क्रिकेट ज्यादा एडॉप्ट कर रहा है, क्रिकेट। ओके ओके, क्रिकेट तो पूरे इंडिया में ही फेमस है जो। राइट जी। राइट। तो हमने ये पॉइंट तो एक्चुअली दिल्ली में भी काफी डिस्कस होता है कि पॉपुलैरिटी तो बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं इनको हमारे एक प्लेयर है मिस्टर के खाखवानी, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो शुरू से ही हमारे साथ हैं। तो आप सुन सकते हैं हमें मिस्टर खाखवानी? आप सुन सकते हैं हमें खाखवानी जी? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप शुरू से 230 से हमारे साथ हैं। मैं भावल नगर से बिलोंग करता हूँ, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से मैं बिलोंग अच्छा, करता हूँ। पाकिस्तान से। अच्छा, आपके यहाँ भी तो क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है जो? जी मैं पाकिस्तान से हूँ। भावल नगर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्टेट पंजाब है, वहां से। तो जैसे हमारे आसाम के साथी ने बताया कि क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है आसाम में, तो आपके यहाँ भी क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें बहुत फाइट करनी पड़ती है एक प्लेयर को, एक बच्चे को क्रिकेट से हटा के उसे टेबल टेनिस की तरफ लाने में, और फिर उसको कंटिन्यू टेबल टेनिस तक ही मुहित रखने में, कि उसका स्टाइल चेंज ना हो जाए। उसका यानी कि क्रिकेट खेलेगा या और गेम खेलेगा, उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, वो उस तरह नहीं रह सकता। तो हम उसे बड़ा फोर्स करते हैं, रोकते हैं कि वो क्रिकेट ना खेले या कोई और गेम ना खेले, लेकिन वो हमसे छुप छुपा के पता लग जाता है कि वो क्रिकेट खेलने लग जाता है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये अच्छी अप्रोच है कि एक खेल को छोड़ के दूसरे खेल में उसको मतलब बाय फोर्स? ये बड़ी बेनिफिट। देखिए हम बातों से और इजीली तो नहीं ना, अब किसी तरह तो हमने क्रिकेट को रोकना है और टेबल टेनिस को उभारना है। तो जिन स्टूडेंट्स पे गिरफ्त है, मैं बेसिकली टीचर हूँ, स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ और कोच भी हूँ। तो स्टूडेंट्स जो हैं मेरे इनके कंट्रोल में होते हैं, तो मैं उनको ना, जो टेबल के जो बच्चे हैं उनको टेबल तक ही मुहित रखता हूँ, और जो वॉलीबॉल खेलते हैं उनको वॉलीबॉल में, जो क्रिकेट वाले उनको क्रिकेट में। गेम को मिक्सचर होने मैं नहीं देता। नहीं, यहाँ इससे मुझे जो है वो, इससे मुझे है ना बेनिफिट होता है, मुझे काफी तरक्की मिली है इस अप्रोच से। वैसे यहाँ ये ठीक नहीं है, मैं इसको मानता नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे प्रैक्टिकली बड़ा बेनिफिट देती है ये चीज। साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, आपको अगर कोई ऐसे करे ना, उसको समझाने का तरीका ये है, देखिए 2 तरीके। उसको बोलिए क्रिकेट तू खेल रहा है, एक बॉलर हो गया, एक पीछे विकेट कीपर हो गया, बाकी 9 लोग फील्डिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटी बॉल आने की 9 लोगों के पास कितनी है? तो कुछ डेवलपमेंट नहीं होना, कोई डेवलपमेंट नहीं होना भैया तेरा, तू जो कर ले। मगर जैसे ही तूने 9 फुट पे 5 फुट के टेबल पे आना है, तो बॉल तेरे पास आएगी आएगी, तेरा दिमाग भी चलेगा, तेरे रिफ्लेक्सेस भी होंगे, तेरे मूवमेंट भी होगी, तेरी ऑलराउंड बॉडी डेवलपमेंट।
नथिंग कैन बीट इट, प्लीज, ये फैक्ट है। मैं मेरी अपने कॉलेज ग्रुप में भी, मेडिकल कॉलेज ग्रुप वाले ग्रुप में भी, टेबल टेनिस ग्रुप में मेरी वो कुछ क्रिकेट के लिए जो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये तो सट्टा है, कोई भी ढंग से तो खेलता नहीं है। अरसा हो गया मेरे को, मैंने देखना ही बंद कर दिया जब वो तेंदुलकर के बाद, तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि सारे पैसे के लिए खेलते हैं। पैशन के लिए खेलना है तो फिर ये वाले करो जहां पर 1 to 1 है, जहां पर जीतना हारना तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्किल लेवल पर है। और इसमें जो डेवलपमेंट है ब्रेन की, रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट, इट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। इट इज कंपेरेबल टू जो चेस करती है। मैं चेस भी बहुत खेलता हूँ। मेरे को जितना आप 1 घंटा आप चेस खेल लीजिए, 1 घंटा आप टेबल टेनिस खेल लीजिए, थकावट उतनी हो जाती और एक्चुअली हो जाती है। और बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, क्रिकेट की तरफ ले जाने के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत मजा आ गया तुमको। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ भामरी जी, सुन पा? हाँ जी, वेलकम टू। मेरा कहना यही है कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी टेबल टेनिस को दे दी है। मैं 86 में मैंने अमरावती से बीपीएड करी, अनुव्यायामशाला, नागपुर से छोटी लाइन चलती है अमरावती के लिए। और उसके बाद 4 साल जीएचपीएच वसंत विहार, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल वसंत विहार में मैंने कोचिंग स्टार्ट करी और 6 प्लेयर इंटरनेशनल निकाले मैंने। हाँ जी। उसके बाद मैंने सीएजी में ट्रायल दिया, कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल, वहां मैं जॉब करता हूँ। 88 में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने अपना सिखाना नहीं छोड़ा। मैंने डीपीएस, मदर स्कूल, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, मैंने जितने भी स्कूल देखे, डीएवी वसंत कुंज, गोइंका हो गया, इनमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है टेबल टेनिस का कि इससे मेंटली आप स्ट्रांग रहते हैं। आप कभी भी देखिए, मैंने घर पे भी टेबल लगा रखा है, आपको दिखाता हूं। ये घर पे टेबल लगाई हुई है, घर पे टेबल लगाई हुई है। आपकी पूरी फैमिली टेबल टेनिस खेलती है? जो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा भी खेलता है, बेटी भी खेलती है। और मैं अपना वसंत कुंज डीडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को कोचिंग करता हूँ यहाँ पर। तो जो 6 प्लेयर्स आपने इंटरनेशनल प्रोड्यूस किए हैं, उनके नाम आप शेयर करना चाहेंगे? मैं नाम बता देता हूँ आपको। रितु भोला, रूबल सयाल, धीरज कोहली, एकता भामरी, इशफाक सिंह, जसकरण सिंह। फैंटास्टिक, कुछ आप प्रॉब्लम जो आजकल, मतलब ऑब्वियसली आप सीनियर, मैं बता देता हूँ। हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, वो स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो फिजिकल फिटनेस बिल्कुल नहीं करते, ना स्कूल वाले कराते। सबसे माइनस पॉइंट आज जो थर्ड वे को बचाने के लिए हमें जो करना है, वो बच्चों को स्ट्रांग करना है। हम स्ट्रांग नहीं कर पा रहे, उसकी वजह हम खुद हैं। हम स्कूल्स में जाके नहीं बोलते कि भाई आप हमें पीटी कराइए, हमें ग्राउंड गेम बिल्कुल हमने बंद कर दिए। बट क्रिकेट तो ग्राउंड गेम है, तो सभी लोग क्रिकेट। ग्राउंड गेम का मतलब है जैसे जो पहले खो खो होती थी, आपके जो ग्राउंड गेम कह रहा हूं मैं, जो पहले बचपन में हम खेलते थे, जिससे हमारी विल पावर बढ़ती थी। आज बच्चों की बिल्कुल इस मामले में 0 है, बता दिया। और इसलिए हम डरते हैं। डर हमारे अंदर तभी है, बता दिया आपको मैंने। इस डर को हमें खत्म करना है, सबसे पहला काम ये करना है। और उसके लिए हमें, जैसे मैं तो खुद कहता हूं कि आप बॉल को जंप करा सकते हो मेडिटेशन के लिए। बच्चों को घर पे सुबह उठ के जल्दी उठें। बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जल्दी उठाना है सुबह। उनको आप घर पे वार्म अप एक्सरसाइज करा सकते हो। आप हल्का सा अपने आप, आजकल तो सारा कुछ उस पे है, यूट्यूब पे। आप योगा करा सकते हो, आप मेडिटेशन करा सकते हो, आप उनकी विल पावर बढ़ा सकते हो, जिससे ये थर्ड वे को हम खत्म कर सकते हैं। तो अब जैसे जो ये प्लेयर सुमित मिश्रा को ये इशू आ रहा था कि गेम्स क्योंकि कम होंगी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इनको इस मामले में विल पावर ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और विल पावर बढ़ती है मेडिटेशन से सर। मेडिटेशन आपको करनी पड़ेगी, आपको डर अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। हमें किसी भी काम करने के लिए, ये सिर्फ टेबल टेनिस के लिए नहीं मैं बोल रहा, आपको कोई भी काम करना है, आपकी विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।
जैसे मैं अब सीएजी में हूँ, बताऊँ, सीनियर अकाउंट अफसर हूँ। मैं विनोद राय जी के साथ काम किया, कॉमनवेल्थ गेम में मैं था, ऑडिट किया मैंने, तो वहां भी विल पावर काम आई। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका काम, आप ऑफिस जाते हो, आपको टेबल टेनिस से मैंने देखा है कि ये विल पावर बहुत बढ़ती है साथों का। तो मैं सर, अभी हमारे होस्ट हैं जो आज के लोकेश, लोकेश किधर? लोकेश, कैन यू हियर मी? लोकेश? हाँ सर, आवाज आ रही, मेरी आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आप कुछ अपना हेलो। मतलब आप बताइए, मतलब जो है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं आज के लिए। ओके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज के प्रेजेंट सिचुएशन है, मीन्स जो कोरोना पैंडेमिक से हम डील कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आप एज अ स्पोर्ट टीचर की बात ले लीजिए या कॉमन पर्सन की बात ले लीजिए, उनके पास एक कोई सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं है। ड्यू टू इसके कारण कई मीन्स जो प्लेयर्स हैं या कोचेस हैं, उनकी जॉब जा चुकी है, क्योंकि वो स्कूल में एज अ पीटीआई स्पोर्ट टीचर थे, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम अभी 0 है। और कुछ अभी कहा जाए तो जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, आपका हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बीइंग अ टेबल टेनिस फैमिली हम कहें या फिर स्पोर्ट फैमिली कहें, तो क्योंकि हम घर में ही रहते, तो फिटनेस में इसका बहुत असर पड़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर हमको वन वर्ड, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें कि एक प्रॉब्लम अगर मुझे बतानी हो, तो ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पास इनकम का सोर्स अभी प्रेजेंट में नहीं है। नहीं है, नहीं, जो मेरी तरफ से मुझे प्रॉब्लम लगती है। ठीक कह रहे सर, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेन, बिल्कुल ठीक कहा। तो सोर्स ऑफ इनकम, तो सर ये जो हमने मीटिंग रखी है, इस मीटिंग अरेंज करने का पर्पस भी हमारा ये है कि आप जो पार्टिसिपेंट हैं, इनकी तरफ से एटलीस्ट एक पॉइंट हमको पॉइंट आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इनकम इज द मेन प्रॉब्लम इन वन वर्ड। यस। तो ऐसे आप लोगों के लिए वन वर्ड में अगर हमको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी हो, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्या होगी? हमारे लिए एक्चुअल क्या है सर, देखिए, जो बिल्कुल इस पे डिपेंड है, कोचिंग पे, ठीक है, उनके लिए तो सबसे बड़ा हमें ये करना है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस इनके लिए हम स्टार्ट कर दें, मिनिमम अमाउंट रख दें, जैसे 100 रुपीज रख दें या 50 रुपीज रख दें, ठीक है। तो एक आदमी अगर 50 रुपीज या 100 रुपीज देगा, तो उनका कम से कम 5,000 या 10,000 रुपए उनका बन जाएगा, ठीक है, एक इनकम बन जाएगी। जैसे मैंने बताऊं आपको, मैंने योगा टीचर लगाया हुआ है, ठीक है, मेरे पास वाइफ टीचर है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मेरे को इनकम आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो योगा टीचर बेचारा है, जिसका सिर्फ यही जरिया है, ठीक है, यही कमाने का है, तो उसको ऑनलाइन मैं योगा से ले रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ 7 से 8। पूरी फैमिली हमारी योगा सुबह करती है 7 to 8, ठीक है। और मेरी तरफ से मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सकती है, अगर कोई नीडी हो बहुत ज्यादा, तो उससे हम जिसको RWA उससे मेडिटेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए उसको हायर कर सकती है, और मिनिमम अमाउंट रख दें, उसके घर का खर्चा चल जाए। मेरा कहने का तो यही। बिल्कुल सर, और मैं तैयार हूं देने के लिए। तो सर एक तो आपने बताया कि अगर चाहिए होगी, हाँ जी, यस, बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये मुझे अच्छा लगा कि आप आगे आके सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और अगर हम कैपेबल हैं, तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कहीं ज्यादा दूर नहीं, अगर नियर बाय, हाँ, अगर आपके नेबर में ही कोई नीडी पर्सन है, तो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई योगा टीचर है और अगर हम उसको किसी प्रकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर पाए, तो बेस्ट है। सर सेकंड ऑप्शन है, अगर हम बात करें फूड की, प्रेजेंट सिचुएशन में, जैसे मैंने इनकम की बात करी, वैसे ही फूड भी एक लोगों के लिए दिक्कत है आज की सिचुएशन में, खाना। बिल्कुल। तो सर एक छोटा सा जल्दी से हम एक ब्रीफ सर्वे टाइप का करेंगे यहाँ पे,
आपको ठीक है। अपना नाम बताना है और एक प्रॉब्लम बतानी है कि आपके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जैसे मैंने तो अपना बता दिया इनकम, ठीक है। इनकम मैंने बता दिया। सर प्रशांत सर, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम? सर मेन तो देखिए वही है, फूड है, इनकम है, ये दो तो मेन इशू है ही आज के टाइम के साथ मेरे हिसाब से। ठीक है सर, और क्या हो सकता है? कोई सर अजय अजय सर, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सबसे पहले जो एक्चुअली जो मेरे मन में अभी सर 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 एक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हमको सोचना नहीं है कि हम टाइम लगाएं। आपके दिमाग में करंट में जो वर्ड आता है वो आप बता दीजिए, आपकी सिचुएशन में जो हो सकता है। अगर हम लोग इंश्योर्ड होते इस पीरियड के लिए, इस स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो ये 3-4 महीने का पीरियड गया है, अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस बेनिफिट होता या इंश्योर्ड होते तो शायद हमें कुछ इंश्योरेंस। यस। ठीक है सर, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आपको प्रॉब्लम वर्ड को किसी वर्ड से रिलेट करना हो तो आप किससे रिलेट करेंगे? जैसे मैंने इनकम से किया, प्रशांत सर ने फूड से किया, और आपने इंश्योरेंस या फिर मतलब सिक्योरिटी से आपने रिलेट किया। इंश्योरेंस कपिल साहनी जी आप, जी सर, कपिल साहनी जी आप किससे रिलेट करेंगे इस वर्ड को, प्रॉब्लम को? हेलो कपिल, आप सुन पा रहे हैं? ओके, मधु जी आप बताएं, आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को अगर वन वर्ड में अगर आप रिलेट करना चाहें तो किससे रिलेट करेंगे? I can hear. ओके Ajay? या जी मैम। Okay. मैम आप मधु जी बोल रहे हैं? Yes. मधु जी बोल रहे हैं? हाँ मैम बोलिए। Yeah, sorry, I'm late actually. जी ओके, तो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर वन वर्ड में आपको प्रॉब्लम अगर रिलेट करना हो किसी वर्ड से? I have just started, so I didn't hear the conversation. अभी आपको मतलब यहाँ पे हम हाँ हाँ सर आप बता दीजिए। जी, आजकल के टाइम में आपको मतलब टेबल टेनिस के रिगार्ड या पर्सनल बिहाफ पे जो प्रॉब्लम आजकल ज्यादा आ रही है वो क्या ज्यादा प्रॉब्लम है? पहली बात तो अभी काफी टाइम से मैचेस ही नहीं हो रहे, और मैचेस नहीं हो रहे। मेन थिंग इज कि as a player, I think practice is the main thing which a person always wants, and to continue that, I think अभी ये कुछ टाइम से चीजें जो बंद हैं उसमें खाली जो टॉप चैंपियंस हैं वो ही वो कर पा रहे हैं, ऊपर वाले लेवल के प्लेयर्स। रेगुलर प्रैक्टिस हम नहीं कर पा रहे। रेगुलर प्रैक्टिस बिकॉज या तो उनके घर में टेबल है या उनके आसपास टेबल है, तो दे आर एबल टू डू दैट, बट अदरवाइज आई थिंक दैट इज वन थिंग। ओके, so next, thank you ma'am. Now next we move to hello sir, can you listen us? क्या आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, किन का नाम आप बता रहे हैं, किनसे बात करना? मोहम्मद ताजुद्दीन। इकोनॉमी इज द मेन प्रॉब्लम। इकोनॉमी, आप प्रॉब्लम को रिलेट कर रहे हैं इकोनॉमी, करेक्ट। करेक्ट। नाउ अच्छा सॉरी, नाउ अनिल बलोनी, हेलो जी जी सर, कैन यू हियर अस? हाँ जी, या आपके अकॉर्डिंग अगर हम प्रॉब्लम वर्ड को रिलेट करना हो
हाँ सर, जो आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो एक टेबल टेनिस प्लेयर के लिए तो मुझे लगता है जो एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो है एक फिटनेस लेवल उसका जो है, एंड स्पेशली आउटडोर फिटनेस, लाइक जो नहीं कर पा रहा है कि वो रनिंग नहीं कर पा रहा है या उसको रनिंग करने को नहीं मिल रही है फिजिकल फिटनेस के अंदर, फिजिकल फिटनेस। तो हाँ ना, जो मतलब जो जहाँ पे अच्छा एक्सप्रेस कर सकती है उसकी बॉडी, वो जो आउटडोर वो करता है वो अभी नहीं कर पा रहा है। घर में आपको पता है घर में कितना हो सकता है, जो सभी का इतना लॉन्च नहीं है या बड़े घर नहीं है, तो जो मिडिल क्लास में जो प्लेयर हैं वो घर के अंदर कितना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं केवल। लेकिन जो जंपिंग एक्सरसाइजेस हैं, रनिंग एक्सरसाइजेस है, तो वो एक वो उसको मिस कर रहा है कोई भी एक अच्छा प्लेयर। तो मैं आई थिंक ये बहुत लैकिंग है। थैंक यू सर। नाउ रावेश कुमार शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रॉब्लम को किससे आप रिलेट करते हैं? रावेश कुमार शर्मा जी। हाँ जी, हाँ सर बोलिए। आपके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम अगर आपको वन वर्ड में बताना हो तो आप किससे जुड़ेंगे आज के सिचुएशन में? हेलो शर्मा जी, आपको कैसी दिक्कत आ रही है आजकल? रावेश जी, कैसी दिक्कत आ रही है आजकल? दिक्कत साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजिकल, हाँ, मतलब डिप्रेसिंग जो आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो न्यूज है, दे कंटिन्यू पूरिंग इन, और जो है हम इतने वैसे इतने एक्टिव हैं, मतलब से फॉर द लास्ट 40 years। अब ये जो ड्रामेटिक एकदम चेंज है ये करेक्ट सर, करेक्ट। डिप्रेशन से रिलेटेड या फिर मेंटल हेल्थ आप कह रहे हैं एक प्रकार से, साइकोलॉजी? Gaurav has something to say. जी सर, थैंक यू सर। नाउ वी मूव टू डॉक्टर ऐश्वर्या। कुछ कह रहे थे? नहीं, डॉक्टर ऐश्वर्या वांट्स टू से समथिंग। No, I was saying mental health सबकी hamper हो चुकी है. That is a very normal feeling in a lockdown. But आप ज्यादातर अपने आप को motivational speakers या something that will perk you up, you know, watch something. That is one idea. Because मैं अभी कोचिन वापस आई दिल्ली से, it was good and bad, but I'm spending time with my mom, quality time, so to speak. Side by side काम भी चलता है. So I think one should read all positive things. Bad छोना तो forget it. इधर बाहर भी निकलना नहीं हो रहा है. Gaurav, you have to say something. Go ahead. Unmute yourself. Gaurav, doctor. About mental health, मतलब meditation, one. Second, stop seeing this TV. इनके हिसाब से तो अभी बर्बाद हो चुके हैं। ये टीवी देखना बंद करिए। मुझे 1 साल हो गया है, मैंने न्यूज नहीं देखी। इनके हिसाब से तो हमें अभी खत्म हो जाना चाहिए। ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने एक्चुअली बेड़ा गर्क कर दिया, और बेड़ा गर्क हो इनका। कुछ भी नेगेटिव चीजें सुनना बंद कीजिए आप बस। वैसे डॉक्टर साहब, मैं कैन आई से जी प्लीज बताइए। ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेंडेमिक टाइम्स आर वेरी हार्ड। जैसे हम सुनते हैं रिगार्डिंग 1918, वो ठीक है, पर इस समय जो हमारा सबसे बड़ी मिसफॉर्चून है, ये हमारा मीडिया है। मतलब वी आर बीइंग कन्फ्रंटेड बाय सच, यू कैन से we have become just a mockery before the world. Yes. That's why he's saying stop watching it. हाँ, हमें अपने आप इतनी हंसी आती है that we are being governed by everyone, like as you say, Delhi government or central government or anyone. We are like governed by like donkeys. देखिए अभी इस दौरान वो सब मेडिकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, और मेरे पास बहुत, मतलब मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से, मतलब हम लोगों ने पूरा एक ग्रुप बना लिया था कि जिसको जरूरत है हम लोग उसको हेल्प करेंगे, और हम लोग ने 10 पैसे नहीं लिए किसी से। करेक्ट।
मेडिकल हेल्प हम लोगों ने, मेडिकल हेल्प जितनी फोन पे हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने कितना ही स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ताकि उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और हम लोगों ने, हम सब ने, मैं अकेला नहीं, मेरे कॉलेज का ग्रुप था, हम लोगों ने अपने स्कूल के ग्रुप्स को हेल्प किया है। मैं अभी ये टेबल टेनिस वालों में भी, मैं किसी मेरे को फोन आता है मैं उसको हेल्प कर देता हूँ। हम लोगों ने 10 पैसे नहीं लिए, मगर मेंटल हेल्थ, मेंटल बेसिकली हेल्थ, चाहे आपकी वो फिजिकल है चाहे मेंटल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको जो टीवी है ना, टीवी वगैरह को, मीडिया को, प्रिंट मीडिया को देखना बिल्कुल बंद कर। आराम से मैं रात को आता हूँ या दोपहर को आता हूँ, बेटे के साथ बैठ के या तो टेबल टेनिस के वीडियोस देख रहा होता हूँ यूट्यूब पे, या चेस के देख रहा होता हूँ, या गाने सुन रहा हूँ। मैंने सुनना ही नहीं है। मेरे को, मुझे ये लोग कितने एक्सपायर कर गए, कितने वो हो गए, मुझे पता है, मगर मैं इस टाइम पे अपना दिमाग नहीं लगा, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता। Mr. Ma, मेरे से ज्यादा Who's this speaking? Sir, Lokesh here. Actually, we just want a brief idea of all the participants. So, can we continue with that? Yeah, go ahead. KK Kakwani sir, according to what is the problem? If you want to say in one yes, word, अगर आप एक वर्ड में कोई प्रॉब्लम डिफाइन करना चाहें तो आप क्या डिफाइन करेंगे? हाँ सर। मैं ये प्रॉब्लम डिसाइड करूंगा कि जो गैदरिंग है, जो यानी कि इवेंट्स हैं, वो नहीं मुनक्कद हो रहे, जैसे टूर्नामेंट्स होंगे या मैचेस होंगे। अगर ये कोई इवेंट्स वगैरह मुनक्कद होते हैं तो बच्चा जो है, स्टूडेंट खुद ही प्रैक्टिस करता है, इसमें वो पार्टिसिपेट ज्यादा करता है, वो एफर्ट ज्यादा करता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो किसी भी जगह पे हो। तो गवर्नमेंट सतह पे जो पाबंदी लगी हुई है, बैन हुआ हुआ है टोटली स्पोर्ट्स पे, वो जब तक लिफ्ट नहीं होगा तब तक जो है ये तरक्की नहीं होगी। यही प्रॉब्लम है आज तक। मतलब ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसके कारण काफी दिक्कतें फेस हो रही हैं। तो बिल्कुल इससे दिक्कत ठीक है। मींस इवेंट अगर होंगे तो जो आपके पार्टिसिपेंट या प्लेयर्स हैं वो कंटिन्यू कर पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू, इज एनीवन लेफ्ट? वाशिम अहमद, डू यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाहेंगे इस अगर आपको कोई प्रॉब्लम बतानी हो वन वर्ड में? ओके, नाउ सुमित मिश्रा, आप कोई प्रॉब्लम बताना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू? हाँ सर, वो मेरा एक वर्ड आपको बताना हो। कैरियर प्लानिंग सर। कैरियर प्लानिंग मीन्स आपकी सिचुएशन में जो चल रहा है उसमें आप अगर कोई प्रॉब्लम का रिलेट करेंगे तो कैरियर से रिलेटेड आप करेंगे। हाँ। ओके, थैंक यू सुमित। नाउ सर, यहाँ पे सबने बता दिया कि कोई अगर रह गए हो तो अपने से आगे आके डिस्कस करें। कपिल जिन्होंने अभी तक नहीं बताया हो कोई प्रॉब्लम। कपिल जी आप बता दें। ओके, यहाँ पे हुए तो झुम्मी यशवर्धन, हेलो। ओके, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, या मधु या? हाँ, योर वॉइस इज क्लियर। यस मैम, बोलिए। Yeah, I just wanted to say, actually I just joined in, तो मैंने वो सुना नहीं much, तो immediately you asked me कि क्या problems है, तो उस समय नहीं मेरे को इतना लगा. So I'm just joining once again to say something. That is, हाँ जी, I feel कि हमारे जैसे अभी कुछ लोगों ने बीच में कहा कि
फिटनेस की बात करी, तो फिटनेस में आई फील कि अगर कोई हम लोगों में से, बिकॉज एवरीबडी मस्ट बी डूइंग समथिंग और द अदर अपने फिटनेस के लिए, तो अगर कोई ऐसा है हमारे बीच में हु कैन टेक लीड एंड डू कुछ जूम मीटिंग जैसे आज हम कर रहे हैं केवल अपने लोगों के बीच में, इस तरह से हर एक कोच एक जूम मीटिंग करके अपने जितने उनके स्टूडेंट्स हैं उनको या तो वो एरोबिक्स का कुछ कराए, फिटनेस या कुछ इस तरह का, जो कि घर में रहते हुए भी, जैसे हम लोग को बोला जा रहा है लॉकडाउन में कि आप टीवी देखते रहिए, आप अपना नेटफ्लिक्स ऐड कर रहे हो, आप प्राइम वीडियो ऐड कर रहे हो, उस तरह से एक बच्चों के लिए प्रोबेबली 30 मिनट्स 45 मिनट्स और 1 आवर, जितना एज पर कैपेसिटी कोई कितना कर सकता है, उनको एक जूम मीटिंग देके दिन के दिनचर्या में इसको भी एक इंक्लूड करे तो सबके लिए अच्छा होगा, इवन फॉर अस। आई फील कि मतलब ठीक है कि जो हम नहीं कर पा रहे बाहर जाके, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी को वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि जो उनका है वो तो जब उनको लगेगा वो अपने हिसाब से दे विल एक्ट, एंड मोreover you cannot say कि पेरेंट्स कैन बी सो enthusiastic कि बोलेंगे जी बच्चे की जान से ज्यादा हमको ये है कि उसको खिलाना है, ऐसा भी कोई पेरेंट नहीं होगा। तो वो जब तक नहीं होता वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट घर में रह के इफ दिस कैन बी इंक्लूडेड इन आवर टीटी सेटअप, की जो भी अपने लोग हैं, जो कोचेस हैं, जो अंपायर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो एकेडमी वाले लोग हैं और जो रेगुलर टीटी खेलते हैं, बी इट वेटरन, बी इट स्टूडेंट, बी इट एनीबडी, हम लोग एक लीड लेके ना, उससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन रहेगा कि सब कर रहे हैं चलो हम भी करते हैं, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। चाहे हम लोग थोड़ा कर पाए, चाहे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ना हो अभी, पर धीरे धीरे करके आई थिंक वी कैन बिल्ड अप सो मच इन दिस टाइम, वी कैन मेक यूज ऑफ दिस लॉकडाउन का। आई फील सो, आई डोंट नो हाउ मच यू एग्री विद मी। नहीं मैम, वी आर completely agree with you. Now sir, all the participants, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ यहीं पे कि जो हमने ये 2 मीटिंग रखी है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किया था। नाउ इन नेक्स्ट मीटिंग जो कि नेक्स्ट संडे को होगा 30 मई, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं रिगार्डिंग आज जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कुछ, तो उनके हम पॉसिबल सॉल्यूशन सर्च करेंगे अपने नेक्स्ट जूम मीटिंग में। ओके। ये प्रेम अधीश कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम अधीश जी और डॉक्टर आयशा कुछ कहना चाहते हैं? I think हम लोग self motivate होने चाहिए this time. My coach is a young guy, national player here. His name is Vaishak. वो मुझे जब भी कॉल पे आता है on a phone, he'll tell me, do your skipping, do your running in place, do your shadow practices. So these are certain tips that he has given me to stay self motivated in the game. Because हम लोग डॉक्टर्स ये भी बिलीव करते हैं कि आप जब अपना मेंटल हेल्थ सोचें तो you will also be better mentally if your physical activity level is good. Because we doctors, I think Gaurav can second me on this, is when your serotonin level goes up, your body feels rejuvenated and stop all the negativities जो हमारे surrounding हो रहा है. So I think we sports people should bring our sportsman spirit out at this time, I feel, and don't give up that whatever it takes, try to keep yourself engaged and watching all positive news only. The negativities will come and go, and there's going to be an end to all this sooner or later.
We just have to keep ourselves pepped up with our table tennis. That's it. जो भी है, जब भी tournament start होते हैं, just get in the ring and fight. Even if you lose, don't stop losing, because then one day you will win. You know, one should accept the loss of life also right now, because in this pandemic, a lot of our friends have died. And I didn't celebrate my birthday myself because our dear friend who's close to Ajay and me, Rahul, is no more. And I don't know when I come back to Delhi if I'll feel the same. But then one should be, you know, thinking of all that and saying, we are still here, let's fight for him. You know, let's fight with him in mind that, you know, he came and left, but he left a good thing. He always played. So just stay positive, guys, and let's do all kinds of whatever is needed to keep ourselves smiling, even if there's a lot of nonsense going on. Yeah? Yeah, ma'am. Correct. You are correct. And Ajay sir? Yeah. सर ये मैंने लास्ट की स्लाइड जो है थैंक यू वाली वो शो कर दी. इसमें नेक्स्ट जो हम रूम मीटिंग अरेंज करेंगे वो 30 मई को रहेगा, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशंस. टुडे वी आस्क अबाउट ऑल द पार्टिसिपेंट्स अबाउट देयर प्रॉब्लम. Now in next session we will discuss about solutions. I think Kapil has joined us. Yeah, Kapil has joined us. Okay. Yeah, he can say something. Yes, sir. Yeah. I am here, sir. Yes, sir. Yes, Kapil. Can I hear this? We can hear you and visible. Yes. सर जो ये पैंडेमिक चल रही है, इसमें सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है इसलिए हुआ है, जो अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15, 13 कैटेगरीज में जो खेल रहे थे, अभी 2 साल से टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सेम थिंग सुमित भी सेम बात कहना चाह रहे हैं कि भाई एज के हिसाब से कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है. इससे प्लेयर बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि काफी प्लेयर बहुत पुअर होते हैं, वो किसी से पैसे लेके लोन लेके अभी खेल रहे होते हैं. मेरे सामने भी, मैं बैडमिंटन कोच हूं एक्चुअल में, तो वहां पे भी अभी क्या है, बच्चे लोन लेके खेल रहे हैं, बाहर अकेडमी में जा रहे हैं. कॉस्टली गेम है. टीटी तो एक्चुअल में थोड़ा फिर भी सस्ता गेम है सर. हमारा बैडमिंटन जो गेम है बहुत महंगा गेम है, तो अभी बच्चे इससे डिप्रेशन हो रहे हैं. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैंडेमिक के बाद आ गई है. मैं इधर यहाँ एक्चुअली प्रशांत जी से पूछना चाहूंगा कि अभी इन्होंने बताया कि लोन लेकर खेल रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा हमारा जो ड्रॉबैक है, ना तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है, ना कोई एनजीओस आगे आए जिनसे जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प की जाए. नहीं एक्चुअली अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग तो रिक्रिएशनल या हॉबी प्लेयर्स के तौर पे खेलते हैं और कुछ एज ए कॉम्पिटिटिव प्लेयर खेलना चाहते हैं. हाँ जी. तो उनके लिए तो बहुत वो नुकसान हुआ है सर. बिल्कुल राइट. बिल्कुल सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है सर. बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि इसको, क्योंकि सर इस लॉकडाउन में हम निकल तो सकते नहीं. गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा. जो महामारी है ये तो हमें इसको हमें कैसे कबूल करना ही पड़ेगी चीजें. नहीं क्या कर सकते हैं. या मेरा कहने का ये जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर है और वो लोन लेके खेल रहा है इस ड्यूरेशन में, उसके लिए ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि कंपटीशन उसको मिल नहीं रहा, टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे. बिल्कुल. और वो लोन अमाउंट से खेल रहा है या खेलना चाहता है. जो रिक्रिएशनल या हॉबी प्लेयर है वो एटलीस्ट लोन लेके नहीं खेल रहा है. बिल्कुल वेरी बिग प्रॉब्लम. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है सर. डॉक्टर दूसरा हमें सर ऐसा है, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जो खेलने वाले लोग हैं वो तो फिटनेस वगैरह सब कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो घर पे भी कर लेंगे. उनका रूटीन है बना हुआ है, सुबह जल्दी उठना. जैसे मेरा 4:30 बजे मैं उठता हूँ, ठीक है, मैं फिटनेस ऊपर छत पे कर लेता हूँ, सब कुछ. उनके लिए हमें काम करना है जो इस लॉकडाउन में नहीं खेल पा रहे या जो नहीं कर पा रहे कुछ, उनको हमने एक्टिव करना है. उनके लिए हमने जो कुछ ऐसा जो मधु जी का सवाल था वो यही सवाल था कि यही था. बिल्कुल सही. बिल्कुल मैं उससे एग्री हूँ सर. बिल्कुल राइट. उनको हमें एक्टिव करना है, उनको जोड़ना है एक्चुअल मेन. डॉक्टर गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं.
ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम में इसमें अवेलेबल हम लोग टर्न बाय टर्न, इसमें टर्न बाय टर्न इनफैक्ट वी कैन टेक चार्ज की, जैसे फिटनेस के लिए आप बोल रहे हो, हर बार since we are going to have it every day or 3 days a week or whatever you decide, उसमें एक कोई लीड ले लेगा, जैसे आज किसी ने कराया, कल कोई दूसरा, परसों कोई दूसरा। ये नहीं कि एक ही के ऊपर लोड आ रहा है कि भाई ठीक है सारे एरोबिक्स एक ने तो सीखे नहीं है, वो भी यूट्यूब देखेंगे, कुछ अपना करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ एक नयापन भी होगा तो ठीक है, दैट इज गुड इनफ। एंड आई फील कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा सोचे अच्छा भाई मैं आज हूँ, 3 दिन मैं अवेलेबल हूँ और उसके बाद चौथे दिन उसको कुछ काम पड़ गया तो 4th डे हमारी क्लास ही नहीं हो रही, तो लेट समबडी एल्स वॉलंटियर कि ओके आई विल डू दैट। क्योंकि सभी लोग अपने आप में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो धीरे धीरे शुरू कर देंगे हमारे साथ साथ। करेक्ट। डॉक्टर गौरव कुछ कहना चाह रहे थे, या डॉक्टर गौरव कुछ कह रहे हैं? चलो मुझे मालूम नहीं मैं नेक्स्ट टाइम होऊंगा नहीं होऊंगा, मगर वो जो था ना कि पॉपुलर करना है टेबल टेनिस को, सिर्फ 2 पॉइंट है। एक, जैसे आपने देखा होगा हर पार्क में ये लोग जिम बना देते हैं, ओपन जिम बना देते हैं। यस यस। वैसे वो उसके ना कंक्रीट के टेबल टेनिस टेबल्स बना सकते हैं। स्प्रिंगडेल्स पूसा रोड में मेरे बेटे के थैंक यू सर। वो लोग वहां पर ये बना रखा है, उन्होंने 2 बना रखे हैं। मैं जब से मेरा बेटा 5th में है, मैं जब से नर्सरी में गया हूँ तब से उनकी जान खा रहा हूँ कि भाई टेबल लगा दो, मगर वही है कि जगह नहीं है। और वो अब तो ये हाल हो गया था पिछले 3-4 साल से कि वो प्रिंसिपल मेरे को देखती थी, वो रास्ता मोड़ लेती थी, फिर कुछ बोल देगा, फिर पीछे पड़ जाएगा। तो मैंने इतना तंग कर रखा था उनको, क्योंकि मैं खुद भी बेस्ट स्प्रिंगडेलियन ही हूँ, तो मुझे इसलिए वो तंग आ गई थी मेरे साथ। दूसरा एक तरीका ये है कि कॉलोनीज में हर एक के पास जगह होती है, मंदिर हो सकता है या कम्युनिटी हॉल है, वहां पर टेबल टेनिस टेबल, जितनी भी नई कॉलोनीज बन रही है वो हमेशा एक टेबल टेनिस टेबल जरूर लगा के रखती है। हमारी कॉलोनी में भी मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मगर वो यहाँ पर पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि वो लोग लगने नहीं दे रहे। वो एक तरह से वहां पर टेबल लग जाए तो बच्चे खेलेंगे, पक्का खेलेंगे। और 20-22 हजार का टेबल आ जाता है, आप कंट्रीब्यूशन दीजिए। दिस इज द वे टू मेक इट मोर पॉपुलर। आई वाज नॉट श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा, मैं बोला मैं ये बोल दूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। नहीं, ये जो डॉक्टर साहब आपने जो ओपन पार्क्स में कंक्रीट टेबल का जो बात किया है, ओपन पार्क्स में, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जो है तालकटोरा में लगी हुई है जी, जहाँ पर स्विंग्स है ना पीछे, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पर तालकटोरा में पीछे की तरफ जहाँ पर स्विंग्स है, जहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है, उसके साथ में उन्होंने कंक्रीट टेबल बना रखे। एक कंक्रीट टेबल है वहां पर टेबल टेनिस का। इवन आप अगर देखना तो आप पूसा रोड में जाइए, वहां पर बने हुए हैं। इवन चाइना में एक है यहाँ पर वो आपके पिंग पोंग क्लब में ही है, उन्होंने भी, मैंने जब ये डाला था तो उन्होंने बोला था कि चाइना में भी बहुत सारे टेबल ऐसे बने हुए हैं जो पार्क्स में बना रखे हैं, तो उसमें आराम से वो लोग खेल सकते हैं। आप इतना बना दीजिए कि उनको कहीं इधर उधर ना, मतलब टेबल टेनिस टेबल मतलब लकड़ी का टेबल मिलना और उसको रखना। होता क्या है कि ये लोग जाने नहीं देते जी, आप तोड़ दोगे टेबल, कंक्रीट के टेबल को क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, खेलो। तो इज इट अ सक्सेसफुल वेंचर जो कंक्रीट टेबल है? अगर चाइना में हो सकता है ना, तो यहाँ पर भी हो सकता है। हमें सिर्फ बोलना है कि भाई एमसीडी वालों को बोलना है, क्योंकि देखिए चाइना से बेटर तो कोई नहीं है ना। नहीं, पर वो जैसे बाउंस या जो वुडन टेबल पे होता है, विल इट बी द सेम ऑन कंक्रीट? मैम टीटीएफआई का ना बड़ा एक आईटीटीएफ का जो मैनुअल है ना, उसमें रूल्स के हिसाब से 30 सेंटीमीटर पे बॉल उछालो तो वो 26 सेंटीमीटर तक आनी चाहिए। हाँ है ना मैम, वो टेस्ट कर लेना, बस और कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से ओके। तो मैम वो एक बार कर ले, वो आपका उस लेवल पे आ जाएगा, बच्चा अपने आप खेल लेगा। But it could lead to a mission. It is a very big mission concrete table. नहीं, अगर ये लोग इतना खर्चा करते हैं वो जो ओपन जिम बनाने में, आप देखो ना, आप हर पार्क में इन्होंने ओपन जिम बना रखा है,
नहीं ठीक है, इन माय एरिया आई कैन डू दैट, बिकॉज यहाँ पे जो एक कंक्रीट टेबल बनाने में क्या ओपन जिम जो कुछ कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले काफी कुछ दे आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ. यू कैन इवन कॉन्टैक्ट इन योर एरिया. आई थिंक मैंने बोला मैम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर ना. ये मैं मोतिया खान में रहता हूँ. यहाँ पर हर किसी को ना हमारे मंदिर है, मंदिर के ऊपर कॉम्प्लेक्स है जो इन्होंने एक वो रखा हुआ है, एक हॉल सा बना हुआ है. मैं 2 साल से मैम ट्राई कर रहा हूँ. 8 लोगों को इकट्ठा कर लिया था जिन्होंने बोला था कि भाई 20,000 का टेबल, 20-21,000 का टेबल हम लोग खरीद लेंगे. फाइनलाइज भी कर दिया, टांग अड़ा दी कि भाई बच्चे ऊपर ना हल्ला मचाएंगे. मैं बोला मुझे एक चीज बताओ, 2 से 5 बजे के बीच में जब मंदिर बंद होता है उस टाइम पे खेलेंगे, कहाँ से हल्ला मचेगा? और अगर जब ये लोग ऊपर जब देते हैं हॉल को, जब वहां पर इनका शादी का अरेंजमेंट होता तब हल्ला नहीं मचता. देखिए आज की मीटिंग में अंदाजन 15 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया और उसमें से 7-8 को हम ऑलरेडी जानते हैं और 7-8 न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं. तो न्यू पार्टिसिपेंट्स के साथ डेफिनेटली हम कनेक्ट कर सकते हैं. और मैं ये सॉल्यूशन को बताना जरूर शेयर कर रहा था डॉक्टर गौरव के साथ, बिकॉज ही इज certified ping pong addict, we have named it. And now मुझे actually I'm very happy to connect with प्रशांत भांबरी also today, because मैं उनसे पहली बार आज जो है वो 1-to-1. तो मैं इस सॉल्यूशन ये बता रहा था डॉक्टर गौरव को कि जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो उनकी एकॉस्टिक की वॉल्स होती हैं जिससे वॉइस बाहर नहीं जाता है. तो सिनेमा हॉल में वो हाई क्वालिटी का होता है, लेकिन आप अगर यही जो फोम होता है अपने टीटी हॉल में लगाएंगे तो अंदर का शोर बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा. तो ये जो सोसाइटी वालों को एक इशू है कि बच्चे शोर करेंगे और शोर बाहर जाए, मतलब किसी को डिस्टर्ब करेगा, तो वो मतलब वो सोल्यूशन है वो ठीक, मतलब इट इज कंट्रोलेबल विद द हेल्प ऑफ दिस. So we were talking about open air, so there's no walls here. So we're not talking about close because actually open. मंदिर में जो हमारे यहाँ कॉलोनी में है, मंदिर के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स जो हॉल बना हुआ उसकी बात हो रही थी. मैं उनको बता रहा था कि हर एक के पास. हाँ, तो मैं प्रशांत जी से एक्चुअली मैं बात करना, या मैं प्रशांत जी की तरफ आ रहा हूँ कि जैसे कम्युनिटी सेंटर है, ये कम्युनिटी सेंटर में जैसे मेरे पास टेबल है तो मैं अपनी टेबल कम्युनिटी सेंटर में दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. मेरे घर में टेबल है, मैं लगाई हुई है, उसको मैं डोनेट कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. कम्युनिटी सेंटर में रख सकते हैं टेबल, और कोई नीडी हो तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं. एक्चुअली जैसे आप कम्युनिटी सेंटर में ये टेबल रख सकते हैं, तो उसके लिए परमिशन किससे लेनी है? हु हैज टू ऑथराइज दैट? RWA जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं, Homeowners Association Secretary, right? Yes. तो इस स्केल पे सर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ यहाँ पे. सर ये जो आपने वर्ड यूज किया था, डॉक्टर सर ने बताया था कंक्रीट टीटी टेबल ओपन आउटडोर के लिए. yes. तो अजय सर ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था मूवमेंट या मिशन. तो अगर ये इनिशिएट लिया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो हमको ये वाला मिशन करना चाहिए कि हर पार्क में एटलीस्ट दिल्ली में पार्क में अगर एटलीस्ट 1 कंक्रीट टेबल हो पाए तो बहुत अच्छा होगा. तो एटलीस्ट हम टेबल परचेज करने के बजाय अगर यहाँ पे हमको थोड़ा अमाउंट अगर कंट्री भी करना पड़े तो वी कैन टेक अ इनिशिएटिव और एक सैंपल के लिए ऐसा कोई पार्क पॉइंट आउट किया जाए जहाँ पे अभी लॉकडाउन में तो अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो बाहर जाए, लेकिन अगर वो आउटडोर जाते हैं तो मॉर्निंग में लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, सीनियर सिटीजन वॉक करने के लिए आते हैं, छोटे बच्चे मिडिल एज वाले लोग ओपन जिम करने आते हैं. तो व्हाई नॉट they can come for playing table tennis. They can bring their bat and ball and we have already outdoor table. If अगर पानी भी बरसेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े से पोंछ देना पानी बरसने के बाद और we can play over there. तो इसको मिशन के तौर पे हमको लेना है. और अगर मेरी रिक्वेस्ट है ये, मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट से,
अगर आप कंक्रीट टेबल जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर आप रूरल एरिया में विलेज में रह रहे हैं तो सरकारी स्कूल के प्लेग्राउंड में कंस्ट्रक्ट करवाने की कोशिश करें। अगर कोई सिटी की बात करें जैसे मेट्रोपॉलिटन या फिर टाउन हो गया आपका, दिल्ली की बात करें, तो वहां पे अगर आपको कोई गवर्नमेंट परमिट मींस फाइनेंस बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इस कंडीशन में अगर आता है तो वी कैन कंट्रीब्यूट एंड मेक अ सैंपल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको हमको करना चाहिए। लोकेश, गौरव हैज समथिंग। एक टेबल ऑलरेडी तालकटोरा पार्क में है, तालकटोरा गार्डन में है पीछे की तरफ। मैं सर उसका फोटो और कुछ आप शेयर कर पाएंगे? मैं चलिए कल सुबह जाता हूँ, कल लेकर आता हूँ। ओके सर। और सर उसका गूगल में आप सर्च करके लोकेशन टैगिंग करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली में एक है और स्प्रिंगडेल्स में भी है। स्प्रिंगडेल्स ऊषा रोड स्कूल में पीछे है। मुझे पता नहीं कल स्कूल में मुझे जाने देंगे नहीं देंगे, मैं कोशिश करता हूँ और कल मैं वहां की भी फोटो डालूँ। ओके सर। कल सुबह करके आता हूँ। सर दिल्ली में जो हमारा मेन है जहाँ पे पार्लियामेंट है और इंडिया गेट है, वहाँ पे साइड में बड़ा सा पार्क या जो गार्डन पड़ता है, वहाँ पे परमिशन मिल पाएगा क्या आउटडोर में? जैसे हाँ, मैं आपको इसमें लोकेश में थोड़ा फीडबैक देता हूँ। आपने जो इंडिया गेट का जिक्र किया, वो पार्क का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मारुति सुजुकी कंपनी को दिया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट पार्क को मेंटेन करने का, चिल्ड्रंस पार्क का। हाँ, तो अगर हम उसका नाम चिल्ड्रन पार्क है। यस, तो वही वो एरिया है, प्राइम एरिया है जो मारुति सुजुकी मेंटेन करती है। अगर हम मारुति सुजुकी को रिक्वेस्ट करेंगे कि उधर एक कंक्रीट टेबल होना चाहिए, तो दे आर ऑथोराइज्ड टू डू दिस। सर उनसे आप ये बात करके, मतलब यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने लेवल पे कुछ इनिशिएट ले पाए, मारुति सुजुकी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, बस परमिशन दिला दें, कंस्ट्रक्ट हम करवा लेंगे, बस वो परमिशन वहाँ पे अलाउ करवा दें कि हाँ यू कैन, आप यहाँ पे बना सकते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। परमिशन तो सीपीडब्ल्यूडी देगा, ये भामरी साहब भी सही बता पाएंगे। परमिशन तो सीपीडब्ल्यूडी से मिल सकेगा। सर इसका हाँ मैम बोलिए। तो ये जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस जो एरिना है वो इतनी खुली है, आई थिंक इट इज बिग इनफ that why can't people go there to play? ये मेरा question था, because I've passed it several times, I've never been inside. लेकिन isn't that not allowed, or is it because of the pandemic they've closed it permanently? What's going on there? Yes. Actually, problem is that all these government ये जो stadiums हैं basically, most of the time the coaches are not available. अच्छा मैम हुआ क्या था, I took my son when he was about 5 years old to इंदिरा गांधी स्टेडियम कि भाई इसको खिलाना है। आई थिंक 4.5-5 साल का। एक मिनट, दीपिका कितने साल का था कौशल जब लेके गए थे आपको? मैम 5 साल का था, अभी वाइफ से कंफर्म किया। पहला था कि बच्चे को टेबल टेनिस नहीं खिलाना। मैंने बोले क्यों नहीं खिलाना? कहते छोटा बहुत है। मैं बोला छोटा तो बहुत अच्छा है ना, एल्बो नीचे आएगी, टॉप स्पिन ठीक से मारेगा। आप टेक्निकल बता रहे हो? मैंने जी मैं टेक्निकल क्योंकि मैं खेला हुआ, मैं अपने लेवल पे खेला हुआ, मैं कॉलेज का वो था, अपना कैप्टन था, मैं खेला हुआ, ठीक से खेलेगा। कहते जी चोट लग जाएगी। मैं चोट लग जाएगी मैं संभालूंगा, मैं डॉक्टर, कुछ टूटेगा फूटेगा मैं देख लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो कहते आप रिटर्न में दो। मतलब अभी ले लो रिटर्न में। तो उनको समझ आ गया कि ये बहुत जिद्दी आदमी है, मानेगा नहीं। इनके हिसाब से इसको बच्चों को पहले आप वो कराइए, जिम्नास्टिक्स कराएंगे, विच इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, और उसके बाद ये सब चीजें डालिए। तो दे आर नॉट अलाउइंग किड्स टू स्टार्ट एट एन यंगर एज। इफ यू डोंट स्टार्ट एट यंगर एज, हाउ विल यू लर्न? एग्रीड। ऊपर से हुआ उनका मतलब you have to वो जुनून पैदा करना, पीछे पड़ना पड़ा। फिर जो कोच साहब थे बेचारे, उनको कभी वहां पर मारुति सुजुकी की नई गाड़ी लॉन्च हो रही है तो वो दैट होल हॉल वाज यूज्ड अप। कभी वहां पर वो बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा है, देन ही इज यूज्ड अप। कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उन कोच साहब को बेचारों को कहीं दूसरी जगह पे ड्यूटी लगा दी।
अच्छा, मैंने बोला मैं खिला देता हूँ, तो एज अ पेरेंट आई कांट गो इनसाइड एंड डू मल्टी बॉल विद हिम, कोच ही आएगा। तो मतलब भाई अगर कोच नहीं है तो किसी और को अलाउ कर दो। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं टेबल तो नहीं उठा के लेके जाऊंगा। और पेरेंट को अलाउ नहीं करना, दिस इज अ स्टूपिड थिंग, यू नो, यू आर द पेरेंट। मैम प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि वो उनको लगता है कि यू आर इन्फ्रिंजिंग इन देयर एरिया। भाई आपको जब तक आप हो तब तक हम नहीं आ रहे हैं, जब नहीं हो तो कोई ना कोई somebody should take over ना। It could be Yeah, I mean, I can understand this. Usul is good for water sports में without a coach or what is that called, lifeguard, we can understand. Yes, drowning issues. What is there in TT? I mean, कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है। वो mentality I started at 5. The moment I shot off the table, I could stand and I started. So it is really sad. अशोक विहार लेके जा रहा हूँ। I think he was 3 years old, तब से मैं खिला रहा हूँ उसको कॉस्टल को। देखो। So Lokesh, yes ma'am, what were you saying? हमने आपको interrupt कर दिया था बीच में, गौरव। मैम वही बस बोल रहा था कि जो सर ने बोला कंक्रीट टेबल का, तो उसके पीछे मैं पड़ जाऊंगा। अब इसको तो बनवाना ही है। Yes, good idea. दिल्ली में 2 बने हुए हैं, अब एक और चाहिए। मैं एक इंडिया में चाहिए, सारे इंडिया में चाहिए। चाइना को हटाना है वर्ल्ड पावर से, इंडिया आएगा सर। एटलीस्ट करेक्ट सर, करेक्ट। एटलीस्ट हर पार्क में एक टेबल होनी चाहिए, होना चाहिए। LDF. Let's listen from Bhambari ji, because he is also very well experienced. He wants to give table to the community center, but he is unable to do it. Prashant sir. So how to help him? बोलिए मिस्टर मीना जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ सर आ रही है, बोलिए सर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें जो ये टेबल कंक्रीट की बनवानी है, ये उस जगह बनाई जाए जहां इजी लोग जाके खेल सके। करेक्ट सर, करेक्ट। मैं क्लियर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ ये वीआईपी एरिया रहते हैं। वीआईपी एरिया में इतना जाम रहता है, रोज आप जाओगे वहां बंद मिलेगा आपको, और आप इरिटेट होके वापस आओगे। हमें वो वेन्यू देखने हैं जहां हमें इजी जाके पार्क में जाके लोग खेल सकें, बस। मेरा अपना सर एक छोटा सा सर यहाँ पे एक छोटा सा इंटरप्शन। हाँ जी, सर जो नेक्स्ट मीटिंग हमारी रहेगी 30 मई को, उसमें सॉल्यूशन के साथ हमको ये भी आप सभी पार्टिसिपेंट एटलीस्ट एक पॉइंट आउट करें जहाँ पे कंक्रीट टेबल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है दिल्ली में। डीडीए पार्क सर ने बताया। हाँ सर, ठीक है। पश्चिम बिहार में बहुत जगह है वो पार्क में। जहाँ पे सर ने, जैसे प्रशांत सर ने बोला कि जहाँ पे सभी आम आदमियों को अलाउ किया जाए। बिल्कुल, डीडीए पार्क तो सबके लिए है ना? हाँ, डीडीए पार्क बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और फिर इसके बाद प्रशांत सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो परमिशन दिलवाएं कि वहां पे टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करवाएं। ठीक है सर। नहीं, इसका प्रोसीजर, अगर पूरा प्रोसीजर पता लगेगा तभी हम आगे मतलब नहीं, मैं चल पाऊंगा। ये अपने वीसी हैं अनुराग जैन, डीडीए के। तो उनको मैं कोचिंग करता हूँ, ठीक है? तो उनको बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, चल पड़ेंगे, साथ चल पड़ेंगे हम। मैं चल पड़ूंगा साथ में। उनके ऑफिस ये विकास सदन है, तो आप पिंग पॉन्ग क्लब या किसी कॉमन में डाल दीजिएगा अजय जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। हाँ जी, so that we know what is, जी how does it look like. अजय सर। हाँ लोकेश। अजय सर ये बोल रहा हूँ कि जो सभी पार्टिसिपेंट हैं, अगर हमारे डिस्कशन में कुछ चीज रह गई है और वो मैसेज के थ्रू बताना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, सजेशन अपने दे सकते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करना है कि हमको पार्टिसिपेंट तो बढ़ाने ही है, ये हमने आपस में कर रहे हैं। अगर आप अपने लेवल पे अपनी एक कोई जूम मीटिंग अरेंज कर पाए अपने लेवल पे, मतलब हम लोग हर वीक में एक मीटिंग करेंगे हम, लेकिन आप अपने लेवल पे वीक में किसी भी दिन आप अपनी एक मीटिंग अरेंज करें, अपने स्टूडेंट के साथ अरेंज करें। Actually, अपने लेवल today this meeting has been fruitful through. Sir, can you explain in English, sir? So I am from Tamil Nadu, so I cannot understand Hindi.
So can you Yeah, just but- explain the things? What is Okay, sir. யாருமா? from Rajesh? தமிழ்ல சொல்லலாம். Who's this? From Ma'am, South. you should explain to him. அப்புறமா சொல்றேன். Translate பண்ணி போடலாம் அப்புறமா. சரி. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank Talk you. in English. Yeah. Yeah, he's Yes, ma'am. talking in English. Ajay, are you concluding or Lokesh is concluding? What's going on? Yeah, but we need to know identity of this Tamil person. We don't know him. Who is he? I think his name was Rajesh Arvi. He just joined. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rajesh Arvi. Yes. Rajesh, you can introduce Okay, yourself. this Rajesh. Rajesh Arvi. கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கப்பா. அவங்க கேக்குறான் ராஜேஷ் ஆர்வி யாரு, இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணும் அப்படி சொல்றான். Mr. Rajesh, Do you want to say something? Ma'am, you can talk in your local language. It is we can comfortable with it. आप language में उनको बात कर लीजिए. I think he's muted himself. Okay, Ajay, carry Yes. on. Sumit will connect with you. Will definitely connect with you. Yes, sir. Yeah. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत Thanks, अच्छा Ajay लगा आपने. and Lokesh, for holding this. We'll see you again on Sunday next week. Thank you, ma'am. And all the best And on your concrete table concrete. बनानी है. Yes, yes, yes. Thank All you the so best. much. Yes, ma'am. Ajay, Thank you, ma'am. yeah, very Thanks, nice Mr. of you to have Mr. organized. Bamri ji, thank you for your input, and everybody. Gaurav, thanks a lot. Thank you. Thank you. Bye, y'all. Bye bye. Questions and doubt, welcome on today's topic. All the participants for making our Zoom meeting successful. On behalf of today's organizers, Ping Pong Club as well as PSIUS, and be prepared for our next Zoom meeting, which will be going to held on 30 May 2021. So be excited to join and be happy, take care during this pandemic situation. Thank you. Have a great day.